एक मिनट. Yes, good evening, Abhijit. Uh, Yes, good evening, sir. Congratulations for selecting in Persistent with a high package 7.5 lakh per annum. Congratulations Thank you, from sir. IT department, WIT. Uh, Thank you, sir. Please introduce yourself. Yes, sir. I am Abhijit Joshi from Barshi, Solapur. I completed my 10th and 12th with 92 percentage and 12th with 76.77 percentage. Now I am pursuing currently BTech degree from Walchand Institute of Technology in Information Technology with 8.86 CGPA. And I like to play cricket, badminton, and yes, that's all about me. Okay, okay, good. So how you are feeling now after selection in Persistent? Yes, sir, very good, happy. I am happy now. Okay. और आपके घर में आपके पेरेंट्स वगैरह वो कैसे है अभी आफ्टर हाँ सर, सिलेक्शन? वो भी अच्छे, मतलब उनको भी प्राउड फीलिंग हो रहा है अभी ओके. सिलेक्ट हुए इसे. बिकॉज आपका फर्स्ट कंपनी है, दिस इज योर फर्स्ट कंपनी एंड persistent, right? Means you are reached Yes up sir, to the yes sir, interview level and you are cracked this. yes sir. Okay. Okay. So please explain in detail like how you have started preparation for the persistent okay, or any other placement company. Yes, sir. First of all, due to this Corona situation, from second year, I come to my hometown, and there were some friends in my town which helped me to grow my knowledge or anything like that, because they helped me to how to overcome the problems, or how to what are the resources that we can use to on a particular subject or other such like that. Yes sir. Okay. Now the first test is there from persistent. Sir, can I elaborate Yes, yes, all the process of yes, persistent? yes. Yes sir. There were a first test of persistent, in which logical thinking is there. Second one is verbal English is there, and coding problems are there. Coding problems are easy. First one is very easy, and second problem is just what medium level. We have to think for 5 to 10 minutes, then we can easily solve that problem. And after clearing this round, up to 4 to 5 days, I shortlisted for the advanced coding round. And in that advanced coding round, there were two problems. Now these problems are difficult as compared to the previous test, because basically these problems are based on DP, dynamic programming, or greedy algorithms. Now I have solved half of problem from both the problems which are given by the test, which are given in the test. And after 8 days, I have shortlisted for the interview, and interview takes place. And in that interview, they asked me about two coding questions. First one is to add the two numbers with the help of linked list, and second one is to frequency of a character in a particular string. These are two coding questions, and then they asked about OS, operating system, computer network, and database. Yes, sir. That's all Okay, about. okay. Yes. So when you started your preparation for the placement, means in the first year or Uh, second year of your B. uh, in serious manner, sir, I have started in third year for first sem, because there were some important subjects are there, that like database or Python. Uh, so these are the, I know that these subjects are important for the placement. So with the academic, I start to uh, uh, develop my knowledge into particular that subjects, database or Python, like. Okay, okay. Uh, like uh, uh, uh,
for regarding the placement, I think have you gone through any internship or any online courses or any for preparation and all? Yes, sir. Yes, sir. I had done one internship, which is ninth sem in institution. Basically, they give me the tutorials about HTML, CSS, how to apply internal CSS, external CSS, how to apply JavaScript, or how to apply various Node.js, like that. They give me some tutorials, and whatever I learned in that tutorial, I just applied my that knowledge into the their front end. Okay, I mean, means I helped to develop a front end of the 9th sem company. okay. अभी आपके जूनियर्स है, अभी सपोज थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, ओके, आप Yes. अभी फाइनल ईयर हो, तो जूनियर्स अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को उनको कैसे तैयारी करना चाहिए प्लेसमेंट के लिए आपके हिसाब से? यस सर। यस सर, कैसा रहता है, मतलब हर सेम को दो दो सब्जेक्ट्स, 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि प्लेसमेंट के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. यस, सो वी हैव टू डन दैट सब्जेक्ट्स परफेक्ट, सो दैट वी कांट डू द या मीन्स, वो जो सब्जेक्ट्स है वो यस, बाद में प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा हमको, बाद में सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं हम उस पे. ओके, मीन्स जो कोर सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कोर सब्जेक्ट्स है. स्ट्रक्चर, सी प्लस यस प्लस, सर. ये प्रोग्रामिंग सब, वो सेमेस्टर में हम थोड़ा परफेक्ट रहा तो प्लेसमेंट के हाँ, टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं. बराबर है सर. मतलब सेमेस्टर के टाइम हमने ज्यादा उस सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया तो हम्म, इजी जाता है प्लेसमेंट के समय. सिर्फ रिवीजन किया तो भी हो जाता है. ओके. और आपने प्रोग्रामिंग कैसे प्रैक्टिस किया? प्रोग्रामिंग के बारे में सर, पहले मैंने हैकर रैंक प्लेटफॉर्म में किया. हैकर रैंक प्लेटफॉर्म में पाइथन चालू किया. फर्स्ट पाइथन में 5 स्टार मैंने लिए, ओनली लैंग्वेज. ओके, Because when we use HackerRank platform in Python, वो क्या होता है, सिंटैक्स हमको पता चलता है कहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हम, क्या नहीं यूज कर सकते. वो हैकर रैंक पे थोड़ा बहुत पता चलता है. और बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम का एक अलग हैकर रैंक पे सेक्शन है. ओके, वहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने 4 स्टार किए हैं. ओके, और लाइक, ये हाँ, हैकर रैंक का, हाँ, हैकर रैंक का होने के बाद मैंने जीएफजी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुआ. जीएफजी प्लेटफॉर्म में कैसा है, टॉपिक वाइज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे दिए हुए, मतलब एरे पे कुछ क्वेश्चंस है, स्ट्रिंग पे कुछ क्वेश्चंस है, डायनामिक कौन प्रोग्रामिंग सा पे कुछ प्लेटफॉर्म हो? क्वेश्चंस है, रिकर्जन. जीएफजी, गिग्स फॉर गिग्स सर. अच्छा, गिग्स फॉर गिग्स, ओके, हाँ, तो वहां पर 4 स्टेजेस में है, बेसिक्स, इजी, मीडियम एंड हार्ड. फर्स्ट सर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, बेसिक और इजी तक गया था. बाद में मैंने थोड़े बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी किए. ओके, और हार्ड प्रॉब्लम की कुछ करने की सर मुझे लगता है जरूरत नहीं, वो बहुत हार्ड रहते हैं. ओके, मीडियम तक किया तो भी बहुत काफी है. और एरे स्ट्रिंग पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब एरे स्ट्रिंग के बहुत क्वेश्चंस रहते हैं. हम्म, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वहां से ही आते हैं. ओके, ओके. अभी बाद लाइक, में मैंने जीएफजी, या, यस सर, जीएफजी होने के बाद अभी अभी मैंने लीड कोड स्टार्ट किया था. ओके, लीड कोड में भी ऐसे ही 3 ही सेक्शंस है, एरे, स्ट्रिंग, ऐसे वो हम्म, नाम ऐसे वो. तो वो भी इजी और मीडियम तक गए तो भी हो जाता है, ओके, मोर देन हाँ, इनफ हो जाता है सर. ओके. तो आपने लाइक हैकर रैंक से आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया और उसके बाद गिग फॉर गिग से थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह समझने के लिए वहाँ आपने रेफर किया और उसके बाद लीड कोड. यस, लीड कोड सर. या, अभी एक्चुअली एक मैंने मेरा ये जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल हैकर और हैकर रैंक वगैरह तो वो मिस करते थोड़ा ऐसे, उसमें सॉल्यूशंस भी देख सकते स्टूडेंट. हाँ, डिस्कशन में वो देख सकते हाँ, हैं. बट कैसा है, कुछ हम्म. स्टूडेंट्स है लाइक उनको ना, लाइक अभी सपोज कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक प्रोग्राम भी नहीं आता है, ओके, वो डायरेक्टली सर, डायरेक्टली हैकर रैंक पे जा सकते क्या वो
प्रैक्टिस के लिए? नहीं सर, वैसा नहीं कर सकते। जो एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है ना, उसी हम्म समय जो सिंटैक्स रहता है हम्म उस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम्म जो वहां पर पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें हम्म ध्यान दिया तो सिंटैक्स हमको पता चलता है। या आईएससी के प्रोग्राम्स कुछ थोड़े बहुत हमने टैकल किए हम्म किए तो थोड़ा बहुत सिंटैक्स कैसा रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स को कैसा हैंडल कर सकते हैं हम, वो हम्म पता चलता है। बाद में ही हम हैकर रैंक पे शिफ्ट होना चाहिए। यस। ऐसे डायरेक्टली शिफ्ट हुए तो नहीं आता हैकर रैंक, तो फिर मीन्स नहीं। हाँ यस। ब्लाइंडली ब्लाइंडली वो सब सिर्फ अटेंड करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन सबमिट कर देते हैं ये हाँ हैकर सर, रैंक नहीं में? वैसा वैसा नहीं मीन्स सर, वैसा तो नहीं स्टूडेंट्स को चलेगा मतलब। हाँ रियली प्रैक्टिस करना हो अ, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द हाँ कॉन्सेप्ट, देन दे हैव टू डेली दे हैव टू प्रैक्टिस वन बाय वन, यस सर। वन बाय वन। यस सर। मीन्स कैसे स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं कि डायरेक्टली अभी हैकर रैंक पे जाते हैं, वहाँ अभी सपोज कुछ मॉक टेस्ट रहा, कुछ टेस्ट वगैरह रहा, तो वहाँ के सॉल्यूशन देके वो सबमिट करके मीन्स सॉल्यूशन नेट में से मिलता है, बट उनको वही नहीं सर, स्टूडेंट्स वैसा नहीं को करना चाहिए। वही स्टूडेंट्स को हम कुछ जो एकेडमिक यस। सर, जो एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है ना, वो हम्म उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक पाइथन, निर्गुणा मैम जब सिखा रहे थे तो मैंने ध्यान दिया था। हम्म तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक बार सिंटेक्स पता चला, मतलब हम्म क्या क्या फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस है, किस जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ये पता चला तो थोड़ा बहुत हमको नॉलेज आ जाता है हम्म कि पाइथन लैंग्वेज कहाँ से कितनी फ्लेक्सिबल है, yes, कैसे हम हैंडल कर सकते हैं उसको। वो हम्म, पता चला तो बाद में हम शिफ्ट हो सकते हैं हैकर रैंक पे। okay। और कुछ टिप्स दे सकते हैं प्रोग्रामिंग जो अभी सेकेंड ईयर, अभी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक सर, डेवलपमेंट? प्रोग्रामिंग का डेली प्रैक्टिस ही करना चाहिए सर, बाकी कुछ नहीं। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। मीन्स सपोज इफ दे वांट टू join in any industry, software industry, they should practice at least one program daily. Yes. यस सर। यस सर। यस सर। Okay. Other than these platform like lead code, hacker rank and all, और कुछ आपने रेफर किया है लाइक फॉर नहीं सर, यही aptitude वगैरह इसके लिए? एप्टीट्यूड के लिए इंडिया बिक्स है, वो अच्छा है। और हम्म इंडिया बिक्स बहुत हो जाता है सर, इंडिया बिक्स से ही मैंने किया था, लॉजिकल जो था वो। आपने कैसे प्रैक्टिस किया था क्या aptitude वगैरह? एप्टीट्यूड का क्या था, वो इंडिया विक्स से भी और जियो गिग्स फॉर गिग्स के भी एप्टीट्यूड सेक्शन है। वहां ओके पर सब लिस्ट दिया हुआ है, मतलब हम्म टाइम का है। गिग्स फॉर गिग्स के सर बहुत अच्छा दिया हुआ है एप्टीट्यूड। वो ओके एक बार देखे ना तो हो जाता है। मतलब कैसा है, रिलेटेड टॉपिक्स दिए उन्होंने। पहला हम्म टॉपिक किया तो सेकंड वाला भी आधा हो जाता है। थोड़ा हम्म थोड़े बहुत कंसेप्ट ज्यादा है, वैसा है मतलब। ओके गिग्स फॉर गिग्स में बहुत अच्छा दिया है एप्टीट्यूड। ओके। और आपने आई थिंक परसिस्टेंट के पहले दो तीन कंपनी भी आपने अटेंड किया है, राइट? आई थिंक टीसीएस, यस सर। एनक्यूटी और इन्फोसिस आपने अटेंड किया यस है। सर। तो उसमें आपने क्या यस सर। गलती किया था जो आपका लाइक सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या मिस्टेक क्या था और आपने उससे कैसे सर, ओवरकम किया? पहले इन्फिटिक्यू का एग्जाम था, तो मैंने वहां पर स्टडी भी किया था बहुत। हम्म पर थोड़ी ऐसी नर्वस फीलिंग थी, क्योंकि पहला टेस्ट था। कैसे हम्म करे, क्या करे, टाइम हम्म बहुत कम था। और प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े थे। मतलब पढ़ना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, टाइम बहुत कम था। जो तो फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसलिए मैंने मतलब, हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़े बड़े थे, मतलब हम्म जो ऑपरेशंस करने रहते हैं स्टैक पे, क्यू पे या एनी डेटा स्ट्रक्चर पे, वो बहुत हम्म बड़े बड़े दिए हुए थे उन लोगों ने। ओके तो ओके वो डिफिकल्ट जाता था, मतलब कैसे ऑपरेशंस करे, क्या करे, और वहां पर भी बहुत कंफ्यूजन रहता था। हम्म इसलिए इन्फिटिक्यू में मेरा नहीं हुआ। मतलब इन्फिटिक्यू मैंने स्टडी किया था उसलिए तो, पर हम्म वो जो स्टडी किया हुआ था वो हम्म बाद में काम को आया मेरे। ओके ओके। मीन्स ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल क्वेरीज, पाइथन डेटाबेस। का जो भी यस सर। यस यस। आपने वो मॉड्यूल्स उप्स कंसेप्ट। किए थे, आप कंप्लीट किए थे इन्फिटिक्यू प्लेटफॉर्म? यस सर। 2 बार किए थे मैंने कंप्लीट, उप्स कंसेप्ट, डेटाबेस, ये जो मॉडल्स थे वो किए थे मैंने। यस यस ओके इन्फिटिक्यू टाइम, इन्फिटिक्यू की एग्जाम थी उसी टाइम किए थे मैंने। ओके।
और TCS एनक्यूटी का आपने अटेंड किया था लास्ट ईयर? TCS एनक्यूटी का किया था सर, पर उनका प्लेटफॉर्म मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा। मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छा अच्छा नहीं है, बाकी है ठीक है, पर प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो हम टैब नहीं यूज सकते। मतलब जो जैसे हम नोटपैड पर कोड लिखते हैं वैसा है, सेम टू ओके सेम। ओके। और और एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, हम्म, TCS एनक्यूटी का एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, एक लेवल अप रहती है। ओके। नहीं, बट प्रैक्टिस किया तो हो जाता है। हो जाता है सर, हो जाता है। गिग्स हम्म। फॉर गिग्स पे बहुत अच्छा दिया है सर, वहां पर उसे किया तो हो जाता है। ओके। और do you have any other plan like higher education or any in the future? Yes sir, I'm not thinking about that, but mm, let's see Okay, okay. Means what further after things getting some will. experience. Okay. Yes sir. Uh, like as per your opinion, like students from second year only they should start for the preparation of coding with the Yes various sir, yes. platform by understanding the concept, and they need to practice in hacker rank. With in hacker rank also there are some modules are available, for example interview preparation, and as you told Interview uh, preparation kit. and I think you told one problem solving, no, problem solving module in the hacker rank. Yes sir, problem solving, and second one is Python. First a particular candidate should solve the Python, whatever the Python module is there. Okay Then he should go to the problem solving, because if he directly jump to the problem solving skill, then he can't do that problem. okay. First we have to understand the Python language, whatever the syntax is there. Yes sir. Or can you explain like some of the mistakes that you are observed in your friend circle, like उनका हुआ नहीं because of such mistakes और because of lack of preparation, ऐसा कुछ cases है आपके फ्रेंड सर्कल में? हाँ हाँ सर, मतलब जब देर से प्रिपरेशन चालू किए तो नहीं हम्म, होता। मतलब थोड़ा बहुत तो पिछले वाला नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि रहना। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ही हम रिवाइज करके उसके ब्रशअप कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली पढ़ने बैठे तो कुछ नहीं आएगा। ओके। मीन्स like by attending some lectures and practicals and by doing the assignment कुछ तो एफर्ट रहना चाहिए। विदाउट एफर्ट यस सर, हम यस सर। डायरेक्टली एक 15 दिन में, एक महीने में हम प्लेसमेंट के लिए रेडी, मीन्स इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट यस सर, पॉसिबल। ओके यस ओके। सर। और ऐसे कुछ जो मिस्टेक्स कुछ आपको मालूम है आपके फ्रेंड्स जिन्होंने लाइक एग्जाम के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम फेस किए, ऐसे कुछ है केसेस? एग्जाम के टाइम में हाँ, मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, पर इन कैंपस प्लेसमेंट में हमने टीपीओ के साथ कुछ बातें शेयर की, मेल शेयर किया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम ओके। जब होता है कंपनी के साइड से, तो हम्म। वो सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। ओके। So is Persistent your dream company, or you want to go for some other companies in the future? Yes sir, now I am satisfied with this Persistent company. If Okay. I want to go, then I will try for that also. Okay. Good. Okay. You help to your friends also, those who are appearing with means the attending the campus placement in various companies. Okay. Yes sir. Sir, Okay. can I make some resources or whatever the interview? I have made some points for that. Yes. 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 Please share. Yes sir. For projects, in interview, the Yes. interviewer asked about the projects. Yes. Now there were some points are there. What interview ask about your project? Okay. First point is motivation behind choosing this project. First point. Okay. Second point is about the project. What are the functionalities or what are the technology stack you have used?
Third one is difficulties that you have faced while building this project. Okay. Fourth one is drawbacks of project. What are the drawbacks of projects and how you handle that drawbacks, and future scope of the projects. These are the points of the interview should ask about the projects. These are the main points, and some resources are there for operating system. We can use Get Smasher channel from YouTube, and computer network. You can use GFG or Gigs for Gigs or InterviewBit. Only 40 questions are there. If we read that 40 questions, we can easily clear about the computer network concepts. And OOPS concept, I have done database and OOPS concepts from InfinityQ platform. Okay. And yes, recording. InfinityQ, it is like they can access by anyone, no? Those who are registered with engineering colleges. InfinityQ, Yes, sir. anyone can access, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, Abhijit, for sharing your experience. And definitely, as your journey, it will inspire to others also for the preparation for the placement. Okay. Yes, So sir. in the future, if possible, we'll have one more discussion on the placement preparation and all. Okay. Yes, sir. Sure, sir. Thank you.